Hello, everyone present here, and it's a great thing to be with you again after a long time. Although I was Good looking afternoon, sir. for some opportunity to interact with you. So today, the topic which has been chosen is the annual event of IPER, which we are having since almost 1 decade in various formats. And let me say it with grace and honor that no institution, no business school in Central India organizes such a session, which is particularly on the union budget. Although it's strange for me because ultimately this is a document which is going to impact your career. This is the document which is going to impact your jobs. This is the document which is going to impact the businesses. This is the document which impacts the fate of our country. And being management students, if you don't know all these things, I think that that's not justice. And that's the intention with which we started with this particular segment of pre-budget and post-budget analysis of the union budget since last 1 decade. Now, the important reason why I was thinking whether I should come in front of you for this particular pre-budget session or not, because it is a pandemic time. Practically speaking, not much to be expected from this union budget. So there was a second thought in my mind, let us break the chain this year. But then I thought, no, let's take the opportunity to tell you what is union budget, what are the important figures, where we are standing, why India is a strong country. And at the end of today's lecture, I'll come with one visual which make you understand the different reasons of our country to be very strong. So let me first come on this particular document called as Union Budget. Union Budget is the income and expenditure estimate of the central government of India, which they present to the nation every year on 1st February. Now, how boring it is. जो मैंने डेफिनेशन आपको अभी यूनियन बजट की बताई है कितना बोरिंग है. मैंने आपसे बोला कि भारत सरकार के इनकम और एक्सपेंडिचर का खाता जो वो साल के शुरू में देश की जनता के सामने रखते हैं उसको यूनियन बजट कहते हैं. अगर हमें यूनियन बजट के बारे में यही समझना होता तो इस सेशन की कोई जरूरत नहीं थी. वी हैव टू गो बियॉन्ड. Now, beyond means how it gets impacted, how that impacts our lives. That's more important to understand. आप लोगों में से कितने लोग ये जानते हो कि हमारे देश की टोटल आमदनी कितनी है? आप बहुत सारे लोग इस सेशन में हैं. मैं एक्सपेक्ट तो नहीं करूंगा कि आप माइक को ओपन करके आंसर देंगे. मैं चाहता भी नहीं बिकॉज वो डिस्टर्बेंस देगा. लेकिन आप जहां बैठे हैं अपने आप को तो जवाब दीजिए, क्योंकि अपने से अच्छा मित्र कोई और नहीं होता जो आप खुद अपने मित्र हैं. तो आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि हमारे देश की टोटल आमदनी कितनी है? चलो ये नहीं सोचा तो क्या कभी ये सोचा है कि ये आमदनी कमाता कौन है? चलो ये नहीं सोचा तो कभी ये सोचा है कि ये आमदनी आती कहां से है? चलो ये भी नहीं सोचा तो कभी ये सोचा है कि भारत सरकार के पास पैसे कहां से आते हैं और कहां जाते हैं? और वो पैसे जब भारत सरकार खर्च करती है तो मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं. आई नीड नॉट से दैट मनी कम्स टू यू डायरेक्टली इन योर पॉकेट. So it's important what government is expending. मैं भारत सरकार की इनकम पर ध्यान नहीं देता. आप भी मत देना. आप तो भारत सरकार के खर्चों पर ध्यान देना. When you focus on the expenditure of the government of India, वो important है because that money is going to come to your pocket. और भाई इससे बड़ी सिग्निफिकेंस तो इस सेशन की नहीं हो सकती ना कि यहां पर बात किस चीज की हो रही है, आपके पॉकेट में आने वाले पैसे की. तो अब कोई पूछे या समझे कि बजट क्या है तो मेरा जवाब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि भारत सरकार का इनकम और एक्सपेंडिचर जो वो हर साल देश के सामने रखते हैं.
अब मेरा जवाब क्या होगा कि बजट वो होता है जो मेरे पॉकेट में कितना पैसा आएगा ये बताएगा. So when we are talking about the money which is going to come to your pockets, it's important to understand that, boss. You should not leave that point. पैसा कितना आएगा, कहां से आएगा, भारत सरकार हमें कितना पैसा देगी और क्यों देगी, और कम देगी तो कम क्यों देगी, ज्यादा देगी तो क्यों देगी. एंड गवर्नमेंट एक हाथ देगी तो दूसरे हाथ लेगी भी. तो जब भारत सरकार को पैसा चाहिए होगा तो वो दूसरी पॉकेट से पैसा निकालेगी भी. तो इन वन पॉकेट, वन हैंड ऑफ द गवर्नमेंट विल पुट इन मनी एंड फ्रॉम द अदर पॉकेट द गवर्नमेंट विल टेक आउट मनी. तो आप सब लोग क्या करने वाले हो कि जब पैसे देने वाला हाथ जेब में आएगा तो आप आंख बंद कर लोगे. जब पैसे निकालने वाला हाथ जेब में आएगा तो आप हाथ पकड़ लोगे. ये एक ह्यूमन बिहेवियर है. नोबडी वांट्स टू पे, एवरीबडी वांट्स टू हैव. तो बॉस पता तो होना चाहिए ना कि पैसा कहां से आएगा और कहां जाएगा. तो बजट यही होता है. सो बजट इज समथिंग विच टेल्स यू फ्रॉम वेयर द मनी विल कम इनटू माय पॉकेट एंड व्हाट इज द अमाउंट विच द गवर्नमेंट इज गोइंग टू टेक आउट फ्रॉम माय पॉकेट. फाइन. दिस इज द प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ द यूनियन बजट ऑफ इंडिया, which will be presented on 1st of February 2021 at 11 a.m. तो 15 दिन पहले अगर मैं आज आपसे कुछ बातें कर लूंगा तो जो 1 फरवरी को प्रेजेंट होगा वो आपको समझ में आएगा. That is the reason why we have done and scheduled this session 15 days early, in which we will talk about all these things. तो मेरा पहला प्रश्न था कि भारत की टोटल इनकम कितनी है. इस पर मैं दोबारा लौटूंगा क्योंकि यह प्रश्न महत्वपूर्ण है. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट. सो टू रीच टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, लेट मी टेल यू कि भारत सरकार आपकी जेब में कितने पैसे हर साल लगभग डालती है और हर साल आपकी जेब से लगभग कितने पैसे निकालती है. इंटरेस्टिंग फिगर है. अब मैं आपको वो बताना शुरू करता हूं. और फिगर्स को सुनना बड़ा ही बोरिंग काम होता है, लेकिन उन फिगर्स को जब आप किसी तर्क के साथ सुनते हैं, व्हेन यू लिसन टू फिगर्स विद सर्टेन लॉजिक, दे बिकम वेरी इंटरेस्टिंग. तो शुरुआत करते हैं. और मैंने आपसे पूछना है कि आपने सुना ही होगा 1 लाख कितना होता है, 10 लाख कितना होता है, 100 लाख कितना होता है, 10,000 लाख कितना होता है, 1 करोड़ कितना होता है, 10 करोड़ कितना होता है, 100 करोड़ कितना होता है, 1,000 करोड़ कितना होता है, 1 लाख करोड़ कितना होता है, 10 लाख करोड़ कितना होता है, 15 लाख करोड़ कितना होता है, 20 लाख करोड़ कितना होता है, 25 लाख करोड़ कितना होता है, 30 लाख करोड़ कितना होता है. यह भारत सरकार खर्च करती है. अगर मैंने डायरेक्टली आपको 30 लाख करोड़ बताया होता ना तो समझ में नहीं आता ये अमाउंट. फील ही नहीं आता. आपने उस चीज को फील ही नहीं करना था. आप फील कहां से शुरू हुआ कि 1 लाख रुपए, फिर हम गए 10 लाख पर, फिर हम गए 100 लाख पर यानी 1 करोड़ पर, फिर हम गए 10 करोड़ पर, फिर हम गए 1000 करोड़ पर, फिर हम गए 1 लाख करोड़ पर, फिर हम गए 10 लाख करोड़, 15 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, 30 लाख करोड़. एक बार फिगर को इमेजिन करना. 30 लाख करोड़ इज द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. आपके मेरे घर का खर्चा, आपके मेरे यानी कि एक कॉमन मैन के घर का खर्चा 10,000 रुपए मासिक से 2 लाख रुपए मासिक तक होता है. ये आंकड़े सरकारी कहते हैं. तो हम कितना खर्च करते हैं? 10,000 से 2 लाख रुपए महीना, यानी साल का कितना? 1,20,000 से 2,24 लाख रुपए तक. 1,20,000 से 24 लाख रुपए तक मेरा और आपका साल का खर्चा है. और भारत सरकार का कितना है? 30 लाख करोड़. दर्द हुआ कि भारत सरकार 30 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है और मेरी जेब में कितना आता है? 1,20,000 से 24 लाख रुपए साल, जो कि मैं खर्च करता हूं.
बिकॉज मनी आपकी जेब में गवर्नमेंट तो डाल ही रही है। तो क्वेश्चन ये आ गया कि 30 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए, बट मुझे कितने मिले? कुछ नहीं। और ये 30 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार के पास आए कहां से होंगे? मेरी जेब, दूसरी जेब, फ्रॉम माई अदर पॉकेट दे मस्ट हैव टेकन आउट दिस मनी। बड़ा सिंपल इक्वेशन है ना, कहीं और से पैसा तो आएगा नहीं। इफ दे हैव एक्सपेंडेड 30 लाख करोड़ which has not come to me because I received only rupees 1,20,000 to 24 lakh rupees per annum. I am talking of a middle class family. तो वो पैसा मेरे पास तो आया नहीं। अच्छा, अब सरकार ने अगर 30 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं, तो वो 30 लाख करोड़ रुपए उनके पास आए भी मेरे पॉकेट से ही होंगे। तो जब मेरे पास थे ही नहीं तो मेरे पास से गए भी नहीं। इंटरेस्टिंग है। So money is not coming to my pocket. Money is not moving out of my pocket. So where the money is going? 30 लाख करोड़ रुपए सरकार का खर्चा है साल का, तो 30 लाख करोड़ रुपए सरकार की इनकम भी होगी साल की। 30 लाख करोड़ रुपीस आए और गए, ना मेरे पास आए ना मेरे पास से गए। इंटरेस्टिंग है। तो ये पैसे गए कहां, है कहां? To be on a lighter note first, then I'll come on the technicalities. ये पैसा हवा में है, और हवा में बहता हुआ पैसा सबका है। बात बहुत गहरी कह रहा हूं आसान भाषा में। ये पैसा हवा में है, और हवा में बहता हुआ पैसा सबका है। ये आपको देखना है कि उस हवा में बहते हुए पैसे में से कितना मुट्ठी भर के अपनी जेब में डालोगे, और ये आपको देखना है कि इस हवा में जाते हुए पैसे में से कम कितना उसमें डालोगे। यानी लोगे हवा से ज्यादा और दोगे कम, ये आपके इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है। सो अ कॉमन मैन इज अर्निंग and expending approximately 1,20,000 to 24 lakh rupees per annum, whereas the government is expending on the country 30 lakh crore rupees and earning 30 lakh crore rupees per annum. वो पैसा कहां गया पता नहीं, वो पैसा हवा में है, और मुझे उस पैसे में अपनी हिस्सेदारी लेना है, तभी मुझे बजट को समझना है। Now, coming and linking to my first question. Acha, I hope first figure is clear to everyone. I don't need answers on the mic, but you can raise your hand, you can show your faces, you can show your thumbs up, and I'll understand that you have understood this figure and thought of mine. I would like to see your thumbs up. Few of thumbs up. In your photograph, in your video also, I would like to see. Yeah, that's great. So 30 लाख करोड़ रुपीस का इक्वेशन मुझे समझ में आ गया कि पैसे कहां से आए और कहां गए। ये भारत सरकार की आमदनी है। तो चलो भाई, बहुत सारे थम्स अप आए, आगे बढ़ते हैं। तो मुझे बताओ कि भारत सरकार की आमदनी और खर्चा तो सुन लिया, अब हमारा इंटरेस्ट सरकार से खत्म। क्यों खत्म? क्योंकि भारत सरकार ने तो 30 लाख करोड़ रुपए खर्च भी कर दिए, 30 लाख करोड़ रुपए हमसे ले भी लिए, और पता नहीं वो कहां आए और कहां गए। सो लेट अस फोकस ऑन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द कॉमन सिटीजन। तो जो भारत की अभी की आबादी है वो है 138 लाख करोड़, 138 करोड़, आई एम सॉरी, लाख करोड़, वो फिगर अमाउंट का आ गया 138 करोड़, 188 करोड़, और ये रिपोर्टेड है। रिपोर्टेड मतलब जो आंकड़ों में दर्ज है, जो नहीं दर्ज है उनका पता नहीं। तो लगभग 138 करोड़ की जो जनता है इस देश की, यानी मैं और आप, हम सबकी मिलाकर आमदनी कितनी है? जरा कभी इसका अंदाज लगाया है? हैव यू एवर थॉट ऑफ व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ ऑल द सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री? तो फिर से शुरू करते हैं, तो कहानी समझ में आएगी। थोड़े बड़े फिगर से शुरू करते हैं। एंड बड़ा फिगर क्या होगा?
देश की आमदनी की बात चल रही है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट द इनकम ऑफ द नेशन। 30 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार की आमदनी है, तो देश की आमदनी क्या 50 लाख करोड़ है? क्या 100 लाख करोड़ है? क्या 150 लाख करोड़ है? क्या 175 लाख करोड़ है? क्या 200 लाख करोड़ है? हमारे देश की आमदनी, मेरी और आपकी, हम सबकी मिलाकर 230 लाख करोड़ है। आई रिपीट, 230 लाख करोड़। भारत के लोगों की आमदनी, जिसको आप आसान भाषा में जीडीपी के नाम से जानते हैं, द टोटल जीडीपी और द नेशनल इनकम, और मैं साधारण भाषा वाला आदमी हूं, हम सबकी टोटल आमदनी मिला लो तो 230 लाख करोड़ रुपए हम सब मिलकर इस देश में कमाते हैं आज। और भारत सरकार कितना कमाती है और खर्च करती है? 30 लाख करोड़। तो मैजिक किसका है? मैजिक मेरा और आपका है। जब सरकार 30 लाख करोड़ खर्च करती है तो मैं और आप मिलकर 230 लाख करोड़ रुपए की आमदनी इस देश में जनरेट करते हैं। ये हाथ दो और ऐसे शाबाशी दो अपने को, पैट योरसेल्फ। जब ये देश की सरकार सिर्फ हमारी जेब में 30 लाख करोड़ रुपए डालती है तो हम उस पैसे से पैसा बनाते हैं और 230 लाख करोड़ रुपया इस देश में कमा लेते हैं। 230 लाख करोड़। दो फिगर दिमाग में आ गए बॉस आज आप लोगों के। वन इज 30 लाख एंड अनदर इज 230 लाख करोड़। जोड़ लेना, देश की बात चल रही है। 30 लाख करोड़, 230 लाख करोड़। So magic is of the common man of this country who is generating national income of 230 lakh crores as against government expenditure and income of 30 lakh crores. ये इक्वेशन को मैंने सेट क्यों किया? Why I have spoken about this in advance? तो एक कोरिलेशन बन गया ना। जब भारत सरकार खर्च करती है तो दे एक्सपेंड इन द कंट्री इन सर्टेन एक्टिविटीज, और वही पैसा हमारे पॉकेट में आता है और उससे हम और पैसा बनाते हैं। तो अगर हमें हमारे देश की इकोनॉमी को 2.3 ट्रिलियन डॉलर, 230 लाख करोड़ को मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं, आसान फिगर लगेगा डॉलर में, 2.3 ट्रिलियन डॉलर। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही ये प्लान है कि आने वाले कुछ सालों में हमारे देश की जो नेशनल इनकम है वो 5 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंचनी चाहिए। यानी कि भारत सरकार ये कहना चाह रही है कि जो 230 लाख करोड़ रुपए की आमदनी है इस देश की, वो बढ़कर 500 लाख करोड़ होनी चाहिए, 500 लाख करोड़। तो कोरिलेशन बड़ा आसान है। 30 पर, यानी जब सरकार 30 लाख करोड़ खर्च करती है तो हम कितना कमाते हैं? 230 लाख करोड़। और इस 230 को अगर डबल करना है यानी 500 करना है तो भारत सरकार को भी अपने खर्च को 30 लाख करोड़ से बढ़ाकर कितना करना पड़ेगा? 60 लाख करोड़। यानी कि जो एनुअल बजट आएगा उसमें मुझे यह देखना चाहिए कि इस साल भारत सरकार अपने खर्चे को कितना बढ़ाती है। जो पिछले साल 30 लाख करोड़ था, क्योंकि टारगेट के हिसाब से तो इसको अब डबल होना चाहिए। 30 लाख करोड़ से 60 लाख करोड़ जाएंगे तभी हमारी देश की आमदनी 230 लाख करोड़ से 500 लाख करोड़ होगी। इट्स अ सिंपल कोरिलेशन। सो इफ our government wants that the total income of this country should go from 230 lakh crores to 500 lakh crores, then they have to increase their expenditure from present 30 lakh crores to almost 60 lakh crores. Simple equation है। क्या मैं आपको अपनी इक्वेशन को समझा पाया? स्मॉल थम्स अप so that I can move further. बड़े बड़े आंकड़े हैं, आसानी से समझा रहा हूं। Yeah, that's great.
Yeah, that's great. Great. Yeah, ये थम्स अप बिल्कुल दिल पे लगते हैं. इट गिव सील हियर. दैट्स ग्रेट. फाइन. तो हमने आज अपने देश के बजट के बारे में दो चीजें समझ ली बड़ी आसान भाषा में, कि अगर हमें अपनी देश की इनकम को डबल करना है तो भारत सरकार के खर्चे को डबल होना पड़ेगा, और अगर देश की इनकम डबल होगी तो मेरी इनकम भी डबल हो जाएगी. इसीलिए मुझे यूनियन बजट समझना चाहिए, क्योंकि मैं किसी और की इनकम में इंटरेस्टेड हूं या ना हूं, बट आई शुड बी इंटरेस्टेड इन माई ओन इनकम. और अगर मेरी इनकम को डबल होना है तो मुझे क्या करना है? भारत सरकार के खर्चे को बढ़वाना है. तो अब सवाल आता है कि भारत सरकार की फाइनेंस मिनिस्टर आप ही से पूछ ले कि भाई खर्च बढ़ाने के लिए तो भारत सरकार की इनकम भी बढ़नी चाहिए, तो वो पैसे आएंगे कहां से? फ्रॉम वेयर दैट मनी विल कम? क्योंकि ये तो पहले मुर्गी या अंडे वाली बहस है कि भारत सरकार कहेगी पहले आप कमाओ तो हम खर्च बढ़ाएं, हम कहेंगे कि पहले आप खर्च बढ़ाओ तो हम कमाएं. तो बड़ा ही विकट स्थिति है. बिकॉज सरकार तो कहती है कि जो हम खर्चा करते हैं वो आपकी पॉकेट से ही निकालते हैं. तो जब आपकी पॉकेट से ही निकालना है तो पहले आप ज्यादा कमाओ तो हम आपकी पॉकेट से ज्यादा निकालेंगे तो हम ज्यादा खर्च करेंगे. और मैं कहूंगा कि भाई मेरी पॉकेट से ज्यादा तो तभी निकालोगे ना जब पहले डालोगे. तो पहले आप डालो फिर आप निकालो. अब ये बहस जो है सालों से चल रही है, विच गिव्स रूम टू ऑल ऑफ अस टू थिंक कि इसका मिडवे क्या हो. तो मिडवे वही है कि हवा में पैसा बह रहा है, आपको देखना है कि वो पैसा स्ट्रीमलाइन कैसे हो. इट शुड गो इन दी राइट डायरेक्शन. तो इस पर आगे बढ़ने से पहले अब कुछ नए आंकड़े मैं आपको दूंगा. तो वो 30 लाख करोड़, 230 लाख करोड़ और 500 लाख करोड़ ये दिमाग में आ गया. एक प्लेटफॉर्म बन गया कि ये फिगर्स हैं बड़े बड़े जो हमको ध्यान में रखने. Now let me come back that government of India is expending 30 lakh crore rupees every year. तो ये भारत सरकार के पास पैसे आते कहां से हैं? पिछले साल भारत सरकार के पास आए थे 24 लाख करोड़, 24 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार के पास आए थे, यानी हमारी पॉकेट से निकल के उनके पास गए थे. और भारत सरकार ने खर्च कितना किया? 30 लाख करोड़. तो आप पूछोगे ये कैसे हो गया? आए 24, खर्च किए 30. तो ये ऐसे हुआ कि ये जो 6 लाख करोड़ का डिफरेंस था ये भारत सरकार ने अपनी तरफ से मिलाया, जिसको फिस्कल डेफिसिट कहा गया. सो आज इस बात को समझ लेना, फिस्कल डेफिसिट इज व्हाट? द डिफरेंस बिटवीन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. So last year, the total income of government of India was 24 lakh crores and government of India expended 30 lakh crores. So almost 6 lakh crores was the fiscal deficit of the government of India, which comes to approximately 2 to 3%. लगभग 3% के आसपास का फिस्कल डेफिसिट हुआ. परसेंटेज ऑफ जीडीपी, जो टोटल हमारे देश की आमदनी है वो 230 लाख करोड़ है, उसका परसेंटेज फॉर्म में निकालो तो 2 से 3% के आसपास फिस्कल डेफिसिट आया. तो अगर भारत सरकार अपना फिस्कल डेफिसिट बढ़ाती है तो यह हमें बजट में देखना चाहिए. फिस्कल डेफिसिट का बढ़ना अच्छा भी है, खराब भी है. अच्छा कब है? कि आमदनी भी सरकार की बढ़ी और सरकार ने खर्च भी बढ़ाया और थोड़ा ज्यादा बढ़ाया. दिस इज अ गुड पार्ट. सरकार की आमदनी नहीं बढ़ी लेकिन सरकार ने अपना खर्च बढ़ाया. दिस इज अ बैड पार्ट. आई रिपीट, डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज फिस्कल डेफिसिट. दिस फिस्कल डेफिसिट माइट बी बैड, माइट बी गुड. Fiscal deficit is bad when government is not increasing its income but increasing its expenditure. Fiscal deficit is good when government is increasing its income and proportionately increasing the expenditure more.
कि आमदनी 10% से बढ़ रही है बट खर्चा 15% से बढ़ा रहे हैं, ये अच्छी बात है। So fiscal deficit is an important part which we should see in the budget in relation to the total income. तो ये जो 30 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार ने खर्च किया और भारत सरकार के पास 24 लाख करोड़ रुपए आए, तो आपके अंदर ये जानने की उत्सुकता, क्यूरोसिटी होगी कि ये 24 लाख करोड़ भारत सरकार के पास आया कैसे। मैंने तो दिया नहीं, मैंने तो बोला भारत सरकार का पैसा हमारी पॉकेट से निकल के जाता है, तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि हमारी पॉकेट में तो 24 लाख करोड़ नहीं थे। तो फ्रॉम वेयर दिस 24 लाख करोड़ रुपीज ऑफ द गवर्नमेंट हैज कम। तो बॉस कुछ बड़े बड़े फिगर दे रहा हूं और ये याद करने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। आई शेयर द पीपीटी, फिगर्स उसमें है, अभी तो समझना है। 24 लाख करोड़, अब लाख करोड़ हटा देते हैं, इट इज अंडरस्टूड फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब मैं सिर्फ 24 बोलूंगा। 24 रुपए अगर भारत सरकार की टोटल आमदनी है तो उसमें से 5 रुपया आता है इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स मींस जो आप और मैं अपनी कमाई पर भारत सरकार को देते हैं। 7 रुपया आता है कॉर्पोरेट टैक्स से। कॉर्पोरेट टैक्स मतलब जो कंपनीज टैक्स पेमेंट करती हैं। 8 रुपया आता है जीएसटी से, जो मैं और आप सामान खरीदने में खर्च करते हैं और जीएसटी का पेमेंट करते हैं। तो 6 + 7 + 8 दैट कम्स टू 21। 6 + 7 + 8 दैट कम्स टू 21। अब देखो आसान लग रहा होगा, लाख करोड़ हटा दिया मैंने। तो 24 रुपए भारत सरकार की आमदनी में से 21 रुपया भारत सरकार के पास कहां से आ रहा है? टैक्सेस से आ रहा है। तो अगर गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर 30 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए करना है, तो ये जो टैक्स कलेक्शन 21 रुपए है, ये भी बढ़कर 42 होना चाहिए। क्या मैं सही कह रहा हूं? इफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑफ प्रेजेंट 30 to 60, तो इन दैट केस जो उनके टैक्स की आमदनी है भारत सरकार के 21 रुपए की, वो आमदनी भी बढ़कर 42 हो जानी चाहिए। सिंपल इक्वेशन। तो सीतारमन मैडम को हमें ये ईमेल कर देना चाहिए कि वी हैव अ सॉल्यूशन हाउ वी कैन रीच टू द $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है मैडम, कि जो टैक्स 21 रुपया आप इकट्ठा कर रहे हो, इसको 42 कर दो, तो खर्च बढ़ा के 60 कर दो, तो हमारी इनकम 500 लाख करोड़ हो जाएगी। दैट्स वेरी सिंपल। हमने हाइपर में इस बात को समझ लिया। तो मॉडल अगर इतना सिंपल है तो इंप्लीमेंट क्यों नहीं होता? अच्छा, अब ये तो हम नहीं कह सकते कि हाइपर में बैठ के मेरे को और आपको ये समझ है, तो भारत सरकार में बैठे हुए पॉलिसी मेकर्स और पॉलिटिशियंस को समझ नहीं होगी। ऐसा तो नहीं मानना चाहिए ना। दिस इज नॉट करेक्ट। So if the model is so simple, then why it is not implemented? And what is the simple model? The government has to increase the expenditure to double. For that, they have to increase their income to double. And because major income comes from taxes, 24 में से 21 रुपया, तो 21 रुपए को बढ़ाकर 42 करना चाहिए। और ये होता नहीं। क्यों नहीं होता? अब बड़े मजेदार डेटा पॉइंट्स मैं आपको दूंगा। एंड बिलीव मी, ये जो डेटा पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूं, अच्छा एक थम्सअप का मुझे आंसर और भी चाहिए। मैं हिंदी में ज्यादा बोल रहा हूं, तो डोंट गेट डिसहार्टेंड कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती। ये थम्सअप दे दो, हिंदी चलेगी ना? आई नीड दिस थम्सअप। डोंट गेट डिसहार्टेंड, मेरी अंग्रेजी ठीक ठाक है, बट स्टिल आई एम प्रेफरिंग हिंदी बिकॉज बात काम की है। ओके फाइन। तो सवाल ये आता है कि साहब, ये जो आंकड़े मैं आपको दूंगा कि टैक्स जो है वो बढ़कर 21 से 42 नहीं हो पा रहा, तो ये जो आंकड़े मैं आपको दे रहा हूं ना, ये आंकड़े नहीं है, ये चुटकुले हैं। जो मैं आंकड़े अब आपको दूंगा, ये आंकड़े नहीं है सच्चाई, पर मैं इनको चुटकुला कहता हूं। As an economist, I call these data points as joke. As economist, I call these data points as jokes.
बच्चा यादव का जोक्स जोक्स। चुटकुले। पहला चुटकुला, आपके देश की टोटल आबादी कितनी है? 138 करोड़, 138 करोड़। राउंड ऑफ बोलते हैं 130 करोड़, चलो 130 करोड़ मुहावरा हो गया ना, 130 करोड़ की जनता। तो 130 करोड़ देशवासी हैं हमारे देश में। चुटकुला नंबर 1, ये चुटकुला नहीं है, अब सुनाऊंगा। सिर्फ 6 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। चुटकुला नंबर 1। चुटकुले खत्म नहीं हुए अभी, चुटकुले खत्म नहीं हुए अभी। अच्छा, बोर होने लगो तो ऐसा वाला थम्स अप भी आता है, वो उसमें साइन में वो दे देना तो मैं रुक जाऊंगा। आई विल चेंज द टॉपिक। ऐसा वाला थम्स अप, और ऐसा वाला थम्स अप मुझे बताता रहेगा कि बोर नहीं हो रहे। फाइन। तो चुटकुला नंबर 1, 130 करोड़ लोग इस देश में हैं और 6 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। मैंने बोला फाइल करते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि भारत सरकार को वो ये लिख कर देते हैं कि हमने कुछ कमाया है। इनकम टैक्स रिटर्न इज व्हाट? रोजी पिक्चर और लैंग्वेज मत दो। इनकम टैक्स रिटर्न कुछ नहीं है। इनकम टैक्स रिटर्न एक चिट्ठी है जो आप भारत सरकार को लिखकर देते हो कि मैंने कुछ इस साल कमाया है। यानी यह तय हो गया कि 130 करोड़ में से 6 करोड़ लोगों ने अगर भारत सरकार को रिटर्न फाइल किया है या चिट्ठी लिखी है, तो 124 करोड़ लोग तो इस देश में कमा ही नहीं रहे। चुटकुला नंबर 2। चुटकुला नंबर 3, ये जो 6 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है ना, इसमें से 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ लोगों ने यह लिख के कहा है कि हमने कमाया तो है पर इतना नहीं कमाया कि उस पर टैक्स लगे। इन इंडिया अगर आपकी साल की आमदनी 2.5 लाख रुपए तक है तो उस पर आपसे भारत सरकार कोई टैक्स नहीं लेती। नए रेट में 5 लाख रुपए तक नहीं लेती, और 5 लाख रुपए से अगर आपकी इनकम ज्यादा है 7.5 लाख रुपए तक, तो आपसे 5% टैक्स लेती है। 7.5 से 10 लाख रुपए तक आपकी साल की आमदनी है तो आपसे 10% टैक्स लेती है। 7.5 लाख से 10 लाख रुपए आपकी आमदनी है तो आपसे 15% टैक्स लेती है। 10 से 12.5 लाख रुपए की आमदनी है तो आपसे 20% टैक्स लेती है, और ऐसे करके 15% से ऊपर है तो 30% लेती है। यानी कि 5% से लेकर 30% तक का भारत सरकार टैक्स आपसे लेती है, और ये कहती है कि 5 लाख रुपए तक अगर आपने कमाया है तो कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब मैं वापस उस चुटकुले पर जा रहा हूं कि 6 करोड़ लोगों ने भारत सरकार को यह बताया कि हमने कुछ कमाया है। उसमें से 2.5 करोड़ लोग ये कह रहे हैं कि कमाया तो है बट 5 लाख से कम कमाया है। तो बता रहे हैं कमाया है, टैक्स नहीं देंगे। पहला चुटकुला 130 करोड़ में से सिर्फ 6 करोड़। तीसरा चुटकुला कि वो 130 करोड़ में जो 6 करोड़ लोगों ने टैक्स रिटर्न फाइल किया उसमें से 2.5 करोड़ ने तो बोला कि हमने 5 लाख से कम कमाया। यानी कुल 3.5 करोड़ लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमने टैक्स देने लायक कमाया है। आमदनी और देश की जनता कितनी है? 130 करोड़। 130 करोड़ में से, समझो यार, 130 करोड़ में से 6 करोड़ लोग बोल रहे हैं हमने कमाया है, यानी 124 करोड़ तो घर बैठे हैं। और 6 करोड़ रुपए में से भी लोग बोल रहे हैं 2.5 करोड़ की हमने तो 5 लाख से ज्यादा कमाया ही नहीं। तो चलो 3.5 करोड़ लोगों पे फोकस करते हैं। चुटकुला नंबर 4, 3.5 लाख करोड़ में से, मैं ध्यान से बोल रहा हूं, नींद में हो तो जाग जाना, 3.5 करोड़ लोगों में से 2.5 लाख, पहले तो इस इक्वेशन को समझ लो, 3.5 करोड़ लोगों में से सिर्फ 2.5 लाख लोग कह रहे हैं कि हमने 50 लाख रुपए से ज्यादा कमाया है। यानी 30% का स्लैब।
यानी 30% टैक्स जिन पे लगता है। एक बार फिर से सोचो, 130 करोड़ की जनता इस देश की, 130 करोड़ में से 2.5 लाख, सिर्फ 2.5 लाख लोग ये कह रहे हैं कि हमने 50 लाख रुपए साल में ज्यादा कमाया, 50 लाख रुपए से। क्लियर है ना? चुटकुला नंबर 5, चुटकुला नंबर 5, सिर्फ 80,000 लोग, माइंड इट, 81,787 टू बी प्रिसाइज, 81,787 लोग ये कहते हैं कि हमारे जो साल की इनकम है वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यानी 130 करोड़ की आबादी में घोषित तौर पर सिर्फ 80,000 लोग करोड़पति हैं। कैसे टैक्स आएगा? इक्वेशन पे वापस जाता हूं। 21 रुपया टैक्स से आ रहा था भारत सरकार के पास, टोटल 24 रुपए की आमदनी में से। उस 21 रुपए को बढ़ाकर 42 करना है। वो करने पर आप और मैं ये चुटकुले सुन रहे थे कि वो 21 से 42 हो ही नहीं सकता। कैसे होगा? बिकॉज आपके देश में करोड़पति तो सिर्फ 80,000 हैं। दर्द है, पेन है। तो क्या, with all this discussion, it seems that I am blaming the citizens of this country for not paying the taxes. Believe me, this is not my intention. I respect the citizens of this country. I know where the problem is. I'll tell you the problem also. जब मैं ये लेक्चर ऑडिटोरियम में लेता हूं आइपर के, तो ये जोक मैं हमेशा देता हूं इस बात को समझाने के लिए कि लोग टैक्स क्यों नहीं देते। There should be some reason ना why people don't pay tax. अब हमें ये मानने की जरूरत तो नहीं है कि लोग कमाते नहीं है इसलिए नहीं देते। ये सब तो मैं और आप जानते हैं कि कमाते तो इससे ज्यादा ही है। टैक्स नहीं देते तो क्यों नहीं देते? तो आई क्रैक दिस जोक इन द ऑडिटोरियम कि एक हॉल के अंदर जब बहुत सारे लोग बैठे हों और उनको बोला जाए कि जब इस हॉल के बाहर आप जाओगे तो आपकी जेब में जो भी पैसा है, अगर 100 रुपया आपकी जेब में है तो 30 रुपए हमें दे जाना। उस ऑडिटोरियम में अगर 200 लोग बैठे हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसमें से 2-4 से ज्यादा लोग बोलेंगे कि मेरी जेब में 100 रुपया है। बोलेंगे क्या? जब मैंने कंडीशन रखी कि आप जब ऑडिटोरियम से बाहर निकलोगे तो आपकी जेब में अगर 100 रुपए है तो 30 रुपए हमें दे जाना। 30 रुपए 100 में, 1 लाख रुपया है तो 30,000 रुपए दे जाना। 10 लाख रुपए है तो 3 लाख रुपए दे जाना। 30 लाख रुपए हैं तो 9 लाख रुपए दे जाना। कौन देगा? तो प्रॉब्लम क्या है? अगला सवाल, अच्छा सब क्या करेंगे? हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। वो जो जेब में पैसा होगा, क्योंकि चेकिंग तो जेब की होगी ना, तो जेब से पैसा निकाल के कोई अपने सॉक्स में छुपाएगा, कोई शू में छुपाएगा, और कोई मेरी तरह सिख हुआ तो पगड़ी में छुपाएगा। मैं कुछ भारी बातों को आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, चुटकुलों में। बातें बड़ी गंभीर हैं, क्योंकि आपने कंडीशन डाली कि मेरे जेब में जितने पैसे होंगे उसका 30% यहां छोड़ जाना। तो चूंकि मुझे 30% बहुत ज्यादा लगता है, तो मैं क्या करूंगा? जेब से पैसे निकाल के जगह जगह छुपा लूंगा। अगली सिचुएशन, मैं लोगों को ऑडिटोरियम में बैठे हुए ये ऑप्शन देता हूं कि भाई आप एक काम करो, जो भी आपकी जेब में है उसमें से आप हमको 100 रुपया है तो 5 रुपया दे के जाओ। बिलीव मी, लोगों के जो सॉक्स, शूज और पगड़ी में पैसे फंसे होंगे वो सब निकाल निकाल के जेब में रखेंगे और बोलेंगे कि लो 5 रुपए।
लो 5 रुपए। सो द प्रॉब्लम इज व्हाट, अगर आपको मैं आसान भाषा में समझाऊं, अभी का जो रेट है 7.5 लाख रुपए की अगर किसी की आमदनी है तो उस पर जो है टैक्स रेट 20% लग रहा है। 7.5 लाख रुपए की आमदनी है तो उस पर जो टैक्स है वो 20% लग रहा है। तो अब आप देखो कि अगर 7.5 लाख रुपए की मासिक आमदनी है तो वो 62,000 रुपए महीने की उसकी सैलरी होगी। तो 62,000 में से वो लगभग 9,000 रुपया जो है वो भारत सरकार को टैक्स में दे देगा। पेनफुल नहीं है? जिस आदमी की 62,000 की सैलरी हो उसको से 9,000 रुपए आप टैक्स ले लोगे हर महीने, पेनफुल तो है। और वो करोड़पति लोगों की अगर हम बात करें, अगर हम करोड़पति लोगों की बात करें तो जिसने 1 करोड़ रुपया और कमा लिया 1 करोड़ के, और वो आपको बता दे तो आप उससे 30 लाख रुपए ले जाओगे। मतलब 1 करोड़ रुपया मैंने कमाया और मुझसे कोई 30 लाख रुपए ले जाए, आपको क्या लगता है मैं बताऊंगा? इस देश की समस्या जो है वो बड़ी सिंपल है इकोनॉमिक्स की, और ये बहस पहले मुर्गी या अंडे वाली ही है। भारत सरकार कहती कि आप टैक्स दो तो हम रेट को कम करें, हम कहते हैं कि आप टैक्स का रेट कम करो तो हम टैक्स दें। एंड दिस टग ऑफ वॉर इज गोइंग फ्रॉम एजेस, एंड इट इज हाई टाइम दैट वी शुड एंड दिस टग ऑफ वॉर नाउ। The first step should come from the government to increase their tax collections. And tax collection में सबसे पुअर टैक्स कलेक्शन जो है वो इनकम टैक्स का है। कॉर्पोरेट सेक्टर से आप उम्मीद ज्यादा मत करिए क्योंकि उनका सारा काम व्हाइट में है, बैंक के थ्रू है, तो वो छुप नहीं पाता। वो जितना कमाते हैं आपको टैक्स दे देते हैं। जीएसटी सारा ऑनलाइन है, सारा टैक्स पेड हो जाता है। सारा का सारा खेल किसका है? इनकम टैक्स का। जो 6 रुपया आपके पास आ रहा है इसको बढ़ाकर 12 रुपए करना है। So this can happen only when you reduce the rate of tax. अब सवाल यह आता है कि यह तो बहुत आसान मॉडल हो गया, गवर्नमेंट डज नॉट हैव रूम टू डू सो, तो भारत सरकार क्या करे? तो ये तो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, सजेशन भी है। इस बार देखते हैं इस बजट में टैक्स के रेट को अगर कम किया तो टैक्स की इनकम ज्यादा होगी, टैक्स की इनकम ज्यादा होगी तो भारत सरकार का खर्च बढ़ेगा, भारत सरकार का खर्च बढ़ेगा तो पूरे देश की आमदनी बढ़ेगी, और देश की आमदनी बढ़ेगी तो वो पैसा आपके और मेरी जेब में ही जाएगा। सो इन दिस बजट व्हाट यू विल सी, द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, the total income of the government, out of that income what are the components, income tax से कितना आया, corporate tax से कितना आया और GST से कितना आया, यही देखना है बस। इसी से समझ में आ जाएगा कि देश की अर्थव्यवस्था आगे कहां जाने वाली है। As a management student you should focus on this, and at the end you should focus on the fiscal deficit whether it is good or bad. सलाह क्या है, सजेशन क्या है, सरकार को करना क्या चाहिए? ये करेगी नहीं, बिकॉज पैंडेमिक टाइम है, ये बहुत चैलेंजिंग ईयर है। मैं नहीं मानता कि ये सजेशन एक्सेप्ट होगा, पर सजेशन देना भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का काम होता है। तो लेट मी गिव दैट सजेशन। थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, थोड़ा ध्यान से समझना, एक बड़ा रेडिकल थॉट है मेरे पास, क्योंकि ये तो मुर्गे अंडे वाली बहस है कि रेट कम कर दो तो हम टैक्स दे दें, वो कहते हैं आप टैक्स दे दो तो हम रेट कम कर दें। तो इसका तो कोई समाधान होना नहीं है। तो सजेशन फिर क्या है, भारत सरकार ऐसा क्या करे? बिकॉज वी आर डूइंग लॉट ऑफ रिफॉर्म्स इन लास्ट 4 to 5 years। हमने डिमोनेटाइजेशन कर दिया, हम जीएसटी को ले आए, हम आत्मनिर्भर भारत प्लान ले आए, वी हैव डन अ लॉट। अगर हम इतना सब कर रहे हैं तो टैक्स पर भी एक रेडिकल चीज होनी चाहिए जो मैं सुझाव दे रहा हूं। पिछले साल मैंने एक सुझाव दिया था कंजम्पशन टैक्स का, मैं उसको रिपीट नहीं करता क्योंकि मुझे नहीं लगता पैंडेमिक टाइम से निकलने के बाद वो अभी पॉसिबल हो पाएगा। बट आई विल आस्क राहुल सर टू शेयर दैट वीडियो विद यू, जहां मैंने आपसे, सब लोगों से, आपके सीनियर से भी ये बात की है कि कंजम्पशन टैक्स लग जाना चाहिए। वो एक अलग कहानी थी, उसको हम बाद में बात करेंगे कभी।
आज एक नया सजेशन है मेरे पास कि अगर वो नहीं हो सकता तो ये करके देखें। हर साल कुछ नया भारत सरकार को हमें बताना चाहिए। नया क्या है? मैंने आपको क्या बोला कि भारत सरकार का इनकम टैक्स कितना आता है? लगभग 5 रुपया। और जीएसटी कितना आता है? लगभग 7 रुपया। टोटल दोनों को मिला दो तो कितना हो जाता है? 12 रुपए। क्या ये इक्वेशन आप सबको समझ में आ गई? क्या ये इक्वेशन आप सबको समझ में आ गई? भारत सरकार के पास जीएसटी का कितना पैसा आता है? 7 रुपया। इनकम टैक्स का कितना आता है? 5 रुपया। इनकम टैक्स तो बढ़ नहीं रहा। तो आई एम गिविंग अ न्यू सजेशन। ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट 5 मिनट्स ओनली, इसके बाद आई लीव यू, बट 5 मिनट तक बहुत ध्यान से सुनना, सजेशन है ये। जितना जीएसटी एक इंडिविजुअल भरता है, जितना जीएसटी एक इंडिविजुअल भरता है, वो उसके इनकम टैक्स में से माइनस हो जाए। मैं ग्रेजुअली चलता हूं, धीरे धीरे चलता हूं, एग्जाम्पल से समझाऊंगा। जितना जीएसटी मैं भरूंगा उतना पैसा मेरी इनकम टैक्स पेमेंट से माइनस हो जाए। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सपोज कर लो मेरा साल का इनकम टैक्स है 10,000 रुपए, है नहीं है बहुत ज्यादा। सपोज कर लो मेरे साल का इनकम टैक्स है 10,000 रुपए, और मैंने बहुत सारा सामान इस साल खरीदा है। घर का सामान खरीदा है, गाड़ी खरीदी है, घर खरीदा है, कपड़े खरीदे हैं, जूते खरीदे हैं, दाल चावल खरीदा है, ये सब खरीदा है। इस पर मैंने जितना जीएसटी दिया वो मान लो टोटल करता हूं तो आता है 6,000 रुपए। आई एम जस्ट टेकिंग अ हाइपोथेटिकल फिगर। तो 10,000 रुपया जो मेरा इनकम टैक्स पेएबल था ना, उसमें से ये 6,000 माइनस कर दो और मुझसे टैक्स 4,000 रुपए ले लो। अब यहां डिबेटेबल इशू आया कि सर वो जो सरकार के आपने 6 रुपए कम करा दिए, वो उनकी इनकम आएगी कैसे? तो मैं ये कह रहा हूं कि टोटल रिस्क गवर्नमेंट की कितनी है? 5 रुपए की, जो उनके पास इनकम टैक्स आ रहा है। टोटल रिस्क सरकार की कितनी है? 5 रुपए, जो उनके पास इनकम टैक्स आ रहा है। मैंने माना कि वो पूरा का पूरा नहीं आया बिकॉज लोगों ने जीएसटी में कटवा दिया। तो भाई वो 5 रुपए कटवाने के लिए लोगों को उतना कंजम्पशन भी तो बढ़ाना पड़ेगा। कंजम्पशन बढ़ेगा तो 30% के रेट पर भले ही टैक्स ना आए, बट 18 से 28% के जीएसटी के नाम पर तो पैसा आ ही जाएगा, जो अभी नहीं आ रहा बिकॉज लोग बिल नहीं कटवा रहे, लोग विदाउट जीएसटी सामान खरीद रहे हैं, लोग उसका रिकॉर्ड नहीं रख रहे हैं। सो जो भारत सरकार का मानना है कि एवरीथिंग शुड बी व्हाइट, तो होगा क्या कि लोग जीएसटी पेमेंट का हिसाब रखेंगे क्योंकि उनके इनकम टैक्स में से वो पैसा कटने वाला है। तो वो जीएसटी का बिल मांगेंगे, जीएसटी का बिल मांगेंगे तो व्यापार का टर्नओवर बढ़ेगा। व्यापार का टर्नओवर बढ़ेगा तो आपका जीएसटी 7 रुपए जो आ रहा था वो बढ़कर शायद 17 रुपए हो जाए। तो इनकम टैक्स में 5 रुपए अगर टोटल लॉस कर भी दिया, इनकम टैक्स में 5 रुपए का टोटल लॉस कर भी दिया, तो जीएसटी में शायद हम उससे ज्यादा पैसे ले आएंगे। दिस इज द रैडिकल थॉट। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, बट आइपेरियंस के दिमाग में हमेशा रेडिकल थॉट्स होने चाहिए। सो व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज दैट जीएसटी पेड बाय यू should be given as a deduction from the income tax payable by you. In this manner, whatever is lost by the government in the form of income tax, they will earn more in the form of GST. जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देके मैं समझाता हूं आपको। एक थम्स अप मुझे और मिल जाए, बोर ना हो रहे हो तो मैं 5 मिनट और ले लूं। कैन आई गो 5 मिनट्स फर्दर? मुझे मालूम है स्क्रीन टाइम इरिटेट करता है, लेकिन वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट और मुझे दे दो, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अगर कोई बिजनेस हाउस है, तो वो जीएसटी पे भी करता है और जीएसटी कलेक्ट भी करता है। आई होप यू ऑल नो जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स।
अगर कोई बिजनेस हाउस है तो वो जीएसटी पे भी करता है और जीएसटी कलेक्ट भी करता है। तो वो जो जीएसटी पे करता है ना, उसका उसको इनपुट क्रेडिट मिलता है। यानी कि मैंने जीएसटी भारत सरकार को देना है 25 रुपए, और मैं ऑलरेडी किसी और बिजनेस को 5 रुपए जीएसटी दे चुका हूं। तो 25 रुपए में से 5 रुपए काटकर मैं भारत सरकार को 20 रुपए दे दूंगा, क्योंकि मेरे 5 रुपए उस व्यापारी ने सरकार को जमा कर दिए। आई रिपीट, सपोज माई जीएसटी पेएबल एज अ बिजनेस is 25 rupees, and I have already paid GSTs to some other business in buying goods from them ₹5। तो मैं भारत सरकार को कितना जमा करूंगा? 25 में से 5 रुपए काट दूंगा, दिस इज द इनपुट क्रेडिट, और भारत सरकार को 20 रुपए दे दूंगा, क्योंकि मेरे नाम पर 5 रुपए उस व्यापारी ने भारत सरकार को दे दिए। तो भारत सरकार के पास तो 25 ही है। ठीक है, अब एक छोटा सा और सजेशन भारत सरकार को जीएसटी का हमने जो दिया है, उस पर एक एग्जाम्पल देके भी बता सकते हैं। कोई बिजनेस अगर अपने बिजनेस के नाम पर गाड़ी खरीदता है, कार खरीदता है, मोटरसाइकिल खरीदता है, तो उस पर 28% जीएसटी लगती है। मान लो कि मैंने 10 लाख रुपए की एक कार बिजनेस में ली, तो उस पर जीएसटी जो है 2,80,000 रुपए है, 2,80,000 रुपीज। ठीक है, तो अगर मैं जीएसटी भारत सरकार को अपने बिजनेस की 5 लाख रुपए देने के लिए मेरी एलिजिबिलिटी है, तो वो 2,80,000 का मुझे इनपुट क्रेडिट मिलना चाहिए ना, क्योंकि मैंने कार खरीदने में 2,80,000 रुपए कार मैन्युफैक्चरर को तो दिए ही है ना। लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है। यानी कि इफ यू बाय ऑटोमोबाइल ऑन द नेम ऑफ योर बिजनेस, यू डोंट गेट द जीएसटी इनपुट क्रेडिट। In the same way, when you buy a commercial property for your business and for your business, उस पर भी जो आप जीएसटी देते हो 12%, वो भी आपको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता। बाकी चीजों पे मिलता है, कंप्यूटर लोगे तो मिलेगा, मोबाइल लोगे तो मिलेगा, टेलीफोन लोगे तो मिलेगा, इन सब पे मिलेगा। लेकिन गाड़ी और घर नहीं मिलेगा। Somebody is saying it's a luxurious goods. No, it's not that. भारत सरकार को डर है कि आमदनी कम हो जाएगी। मैंने बोला व्यापार के नाम पर अगर मैंने गाड़ी खरीदी है, व्यापार के नाम पर अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, तो मुझे इनपुट क्रेडिट मिलना चाहिए। Why I have taken these two specific examples? Logic is very simple. हमारे देश में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले 2 ही सेक्टर्स हैं, ऑटोमोबाइल और रियल एस्टेट। 10 लाख की गाड़ी अगर आपको 7,20,000 में पड़ने लगे, तो आप उस गाड़ी को 1 नहीं 2 खरीदोगे। 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पर 12 लाख रुपए की टैक्स छूट आपको मिलेगी, तो आप 88 लाख में उस प्रॉपर्टी को 1 नहीं 2 बार खरीदोगे। सो इट इज गोइंग टू किक द डिमांड इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर एज वेल एज इन द रियल एस्टेट। और ऑटोमोबाइल और रियल एस्टेट में डिमांड बढ़ने का मतलब होता है डायरेक्ट इनकम राइज, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। समबडी वाज राइटिंग इन द चैट बॉक्स की कंजम्पशन कैसे बढ़ेगा जब इनकम नहीं बढ़ेगी। ये कह रहा हूं मैं कि जब आप ऑटोमोबाइल और रियल एस्टेट में पैसा डालोगे, तो भारत सरकार के पास पैसा डालने के लिए तो नहीं है। तो भारत सरकार क्या कर सकती है कि पैसा हम आपसे लेंगे कम। इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट विच वी आर डूइंग। So if they give this rebate on real estate and automobile, it will kickstart the real estate and automobile sector, which is going to increase the income, which is going to increase the employment, which is going to increase the consumption. और consumption बढ़ेगा तो दूसरा सुझाव मैंने दे ही दिया कि जितना जीएसटी दोगे इनकम टैक्स से माइनस होगा। विन-विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। रिस्क क्या है? सिर्फ 5 रुपए की। 24 रुपया भारत सरकार की आमदनी है, उसमें 5 रुपए इनकम टैक्स है। एक बार ये रिस्क लेना तो बनता है। अगर मॉडल फेल हुआ तो 5 रुपए इनकम टैक्स की जाएंगे ना, बस, बाकी सब तो वही। दिस इज व्हाट आवर सजेशन इज। बिफोर आई एंड दिस पर्टिकुलर सेशन, चैलेंजेस पर मुझे बात करनी होगी जो इस बजट के चैलेंजेस होंगे। पैंडेमिक से निकले, -24% जीडीपी थी, -7.5% हुई। गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट जो 3% था, वो बढ़कर मेरे हिसाब से 7 से 8% हो चुका होगा, बिकॉज गवर्नमेंट को इनकम नहीं आई, एक्सपेंडिचर सरकार ने बहुत किया। तो इस बार के बजट में टैक्स कम होने की तो उम्मीद कम है, शायद कोई नया सेस आए।
शायद टैक्स के रेट बढ़े, शायद कुछ छूट कम की जाए, क्योंकि भारत सरकार को पैसे की जरूरत है और भारत सरकार का मेजर सोर्स ऑफ इनकम जो है वो टैक्स ही है। तो सवाल यह है कि जब हमारे को पता है कि ये चैलेंजेस हैं, तो हमने आज ये सारी कथा कहानी करी क्यों? बिकॉज ये कथा कहानी आपके अगले 5 साल के लिए आपको तैयार करती है कि वेयर द इकोनॉमी शुड हेड ऑन, वेयर द इकोनॉमी शुड मूव, हाउ वी कैन बिकम द $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो अब अगर आपसे कोई पूछे, आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं और आपसे पूछा जाए कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम कैसे बनेंगे, तो आपका जवाब बड़ा सिंपल होगा, हमारे देश के सरकार के खर्च को दुगना करके। तो वो पूछेंगे कि सरकार का खर्च दुगना कैसे होगा, तो हमारे देश के सरकार के टैक्स कलेक्शन को दुगना करके। तो वो पूछेंगे कि ये कैसे होगा, तो आप बताना कि जीएसटी से होगा, रियल एस्टेट से होगा, ऑटोमोबाइल से होगा। देन यू विल बी कॉल्ड एज एन हाइपेरियन। That is the reason why we spoke about the challenges also and suggestions to the government also. दूसरा बड़ा चैलेंज जो मुझे इस साल दिख रहा है बजट में, जो मुझे लगता है बजट में गवर्नमेंट विल टच दैट पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज द कंडीशन ऑफ बैंक्स एंड एनबीएफसीज। बैंक्स और एनबीएफसीज का बहुत सारा एनपीए होने वाला है, बहुत सारा पैसा डूबने वाला है, लोन्स का पैसा इंस्टॉलमेंट का शायद वापस ना आए, तो उसके लिए गवर्नमेंट कोई प्रोविजनिंग जरूर करने वाली है। वी हैव टू सी दैट। एंड बिलीव मी, इस देश में आम आदमी, मैं कुछ लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, आम आदमी, कॉमन मैन जो है वो लोन चुकाना चाहता है। वो लोन तभी नहीं चुकाता जब उसके पास पैसे होते नहीं। वी ऑल आर ऑनेस्ट पीपल बेसिकली। सो दिस इज व्हाट आवर सजेशन इज। इन द बिगिनिंग आई टोल्ड यू कि इंडिया ग्रेट क्यों है, और उसके मैंने आर्थिक कारण आपको बताए। लेकिन इस पैंडेमिक से निकलने के बाद आज भी हम वापस उठ के खड़े हुए हैं। ये ऐसा क्यों हुआ? ये पावर जो है इंडिया की कहां से आई, उसके लिए एक विजुअल मुझे आपको दिखाना है। तो अपना ईयरफोन, हेडफोन, ईयरबड्स सारी चीजें तैयार कर लो, एंड देन वी विल सी व्हाई वी विल बी द विनर्स इवन आफ्टर दिस पैंडेमिक। हम इस देश में रहते हुए क्या क्या कर सकते हैं, ये जादू आपको देखना चाहिए। और एक जादू तो हम करते ही कि हम 10 गुना ज्यादा कमाते हैं जितना भारत सरकार हमको पैसा देती है। ये जादू तो हम सालों से कर रहे हैं, और वो जादू और कैसे होगा वो हमको देखना है। इस वीडियो के बाद मैं आपसे 1 मिनट के लिए बात करूंगा अगले सेशन के बारे में। सो प्लीज हैंग ऑन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द वीडियो ऑल्सो। एंजॉय दिस वीडियो, बिकॉज अगेन आई से, जब भी हम अपने देश के बारे में बात करते हैं, आई हैव बटरफ्लाइज इन माई स्टमक। तो मैं ये ढूंढता रहता हूं, और जब मुझे मिलता है तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। दैट इज द रीजन व्हाई वी ऑल आर द बॉर्न विनर्स। वी इंडियंस आर द बॉर्न विनर्स। हिंदुस्तान, इंडिया। इंडिया, आखिर ये देश महान क्यों है? Why is India great? Because by year 2022 we'll destroy China's population 1.4 billion, और uneven social stratification, या हमारा सिस्टम, पॉलिटिकल इश्यूज, टेररिज्म, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, इलिटरेसी, राइट? नो, नहीं, सारी दुनिया एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। ऐसी संस्कृति, सभ्यता वाला हमारा देश, जो हम सबके सीने में धड़कता हुआ हिस्सा है, उसी का तो ये सारा किस्सा है। हम उस देश के वासी हैं जहां अव्यवस्था में भी व्यवस्था है, और हमारा मंगलयान हॉलीवुड मूवी ग्रेविटी से भी सस्ता है। पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंचने वाला पहला देश भारत है, और चंद्रयान 2 के बाद भारत वो पहला देश होगा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखेगा। एक वो दिन था जब 1963 में हमारे पहले रॉकेट को एक साइकिल पर लाया गया था, और आज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो विश्व के सबसे सफल अंतरिक्ष संगठनों में से एक है। वो क्या है ना, अंदाजा सिर्फ ताकत का लगाया जा सकता है, हौसलों का नहीं। और बात जब खेलों की होती है तो हौसले के साथ साथ जुनून और पागलपन भी बेशुमार होता है, क्योंकि कबड्डी के सारे वर्ल्ड कप इंडिया ने जीते हैं। मैरी कॉम विश्व चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला मुक्केबाज हैं। 21 दिनों में 6
गोल्ड मेडल जीतने वाली द गोल्डन गर्ल हिमा दास, पंकज अडवाणी स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों के सभी प्रारूपों में विश्व खिताब जीतने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि क्रिकेट के तो इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, पूछता रहेगा इस दुनिया में सदियों तक ऐसा अंजाम लिखा है हमने। देयर इज नो कंट्री मोर डाइवर्स देन इंडिया। रंगों का देश जहाँ हर दिन एक त्योहार है। हमारी कला, संस्कृति, सभ्यता इतनी समृद्धशाली है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व जब विश्व में ज्यादातर सभ्यताएं खाना बदोश जीवन व्यतीत करती थी, तब भारत में सिंधु घाटी उन्नति के शिखर पर थी। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन लिखित ग्रंथ है। भारतीय सभ्यता और वेदों ने आज से कई हजार वर्ष पूर्व पॉइंट, जीरो, नंबर सिस्टम, नेविगेशन और कैलेंडर से लेकर नृत्य, गायन, वादन और सभी कलाओं के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, साइंस, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, बिजनेस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेचुरल लॉ और मेडिकल साइंस के साथ साथ स्पेस साइंस तक का लिखित प्रमाणित ज्ञान दिया है। इस संसार के सबसे प्राचीन नगर भारत में है। गोल्डन टेम्पल दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला धार्मिक स्थल है, जहां जाति, धर्म, वर्ग और उम्र के दायरों से ऊपर उठकर हर रोज लगभग 1 लाख लोगों को श्रद्धा से भोजन कराया जाता है। ऐसा देश जहां 3 लाख से अधिक मस्जिदें, कुंभ मेला, द लार्जेस्ट गैदरिंग इन ह्यूमन हिस्ट्री, एक साथ 15 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का तीर्थ, जिसे अंतरिक्ष से देखा जा सकता था। यह मन को शांति देने वाले बुद्धा के विचार है, जीसस की प्रेयर है, वाहिगुरु की अरदास है, रहीम की खीर है और राम का प्रसाद है। अनेकता में एकता की इससे बेहतरीन झलक शायद ही कहीं और होगी। माना यहाँ थोड़ा बाय वन भरोसा एंड गेट 100% धोखा फ्री है, जगह जगह लंबी कतारें हैं और पेट्रोल पंप में तो सिक्योरिटी वार्निंग लिखी होती है, द यूज ऑफ सेल फोन्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, और ठीक उसके बगल में लिखा होता है पेटीएम करो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इंडिया इन्वेंटेड पोस्टिंग शिट ऑन द वॉल्स लॉन्ग बिफोर फेसबुक। दरअसल यहाँ जीवन वर्थ है, व्यर्थ नहीं है। और तो और विश्व के 75% बाघ भारत में पाए जाते हैं। और साथ ही भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी नर्मदा नदी के छोटे से टापू पर बनाई गई विश्व की सबसे विशाल प्रतिमा द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल, सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, एंटी ग्रेविटी हिल्स, द वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार, दुनिया का सबसे बड़ा रेल ब्रिज, दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन। वैसे ट्रेन से याद आया, यहाँ डर के आगे जीत है और दादर के आगे सीट है, क्योंकि भारत में प्रतिदिन जितने लोग रेलवेज में ट्रेवल करते हैं उतनी तो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है। आधे से कुछ ज्यादा, पूरे से कुछ कम, जो लाखों में एक होते हैं वही है हम। भारत की जुड़वा बहनें ताशी और नुंशी मलिक, जिन्होंने 23 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट सहित दुनिया के 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों को फतेह कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। ज्योति अंगे इज द शॉर्टेस्ट वुमेन इन दी अर्थ, और दुनिया भर में जितना सोना है उसका 11% सोना तो केवल भारतीय महिलाओं के पास है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट्स भारत में है। और भारतीय माँ, हर भारतीय माँ डॉक्टर होती है विदाउट MBBS डिग्री। And we have recognized third gender. Everyone is guaranteed their rights in our country. और कुछ चीजें बेवजह ही अच्छी लगती हैं, जैसे कि इंडियन क्विजीन, जिसमें है परंपराओं का तड़का, विविधताओं का स्वाद, खट्टा मीठा चटपटा, हर जायका है लाजवाब। दुनिया का सबसे बड़ा मसालों का उत्पादक देश भारत, जहां विश्व की 25% दालों का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ सबकी एक ही राय है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज चाय है। और ये किस्सा नहीं कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। द बिजनेस टाइकून मुकेश धीरूभाई अंबानी, द रिचेस्ट इंडिविजुअल इन एशिया एंड 18th wealthiest person in the world, Lakshmi Nivas Mittal, the king of steel, Ratan Naval Tata, owner of Jaguar, Land Rover and the Tata Group, and CEO of Google, Mastercard, Microsoft,
Adobe, PepsiCo and many more. अब जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। यहाँ सिनेमा मैजिक है, एडिक्शन है, पागलपन है, प्यार है, थेरेपी है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्म प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री है। और अब हॉलीवुड की बड़ी बड़ी मीडिया कंपनीज 21st सेंचुरी फॉक्स, वार्नर ब्रदर्स, द वॉल्ट डिज्नी भी बॉलीवुड में इन्वेस्ट कर रही हैं। और बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। बिकॉज शाहरुख खान इज द रिचेस्ट एक्टर ऑफ दिस प्लेनेट। और पूरे वर्ल्ड में Amazon प्राइम वीडियो इंडिया में सबसे सस्ता है। माइक्रो प्रोसेसर, पेंटियम चिप, ऑप्टिक फाइबर और रेडियो वायरलेस कम्युनिकेशन से लेकर द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सैटेलाइट को भारत ने इजाद किया है। स्पिनिंग व्हील, कॉटन कल्टीवेशन, डायमंड एंड जिंक माइनिंग से लेकर फिबोनाची नंबर्स, बाइनरी कोड और रूलर तक उस देश की देन है जहाँ जाति, धर्म, भाषा, बोली अलग अलग है, फिर भी सबका है सम्मान। पूर्व से लेकर पश्चिम तक सारा एक हिंदुस्तान। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर वाला देश, जिसने अपने 1 लाख वर्षों के इतिहास में कभी किसी देश पर पहले आक्रमण नहीं किया, वो इतिहास है भारत। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, जहां विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी रहती है, उन युवाओं की रग रग में दौड़ता सुर्ख लाल रंग है भारत। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जहां फरिश्ते सिर्फ आसमान में नहीं रहते, जमीने हिंद में उन्हें जवान कहते हैं, जो -53 डिग्री सेल्सियस की ठंड से लेकर 52.4 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में भी सीमा पर तैनात होकर देश की रक्षा करते हैं और अपनी मातृभूमि के लिए मुस्कुराते हुए जान भी दे देते हैं। वो जवान, वो सैनिक है भारत। ऐसा देश जहां देश को देश नहीं, माँ, भारत माता समझा जाता है। ऐसे अखंड भारत का नागरिक होने पर हमें गर्व होना चाहिए। और यही वो चीज है जो इस देश को एक महान देश बनाती है। दैट्स व्हाई इंडिया इज ग्रेट नेशन। और अगर आप सबका दिल भी इन बातों से जोरों से धड़कने लगा है, तो इसे अपने साथियों से जरूर शेयर करें। वंदे मातरम। My heart rate, actually, my watch is showing 132. This is India. Let me clear one thing. पैसे से खुशी आए ना आए, ये पक्का नहीं है। पैसे से खुशी आए ना आए, ये पक्का नहीं है, पर खुशी से पैसा जरूर आता है, ये पक्का है। और हिंदुस्तान के लोग आपस में एक दूसरे के साथ खुश हैं, और यही खुशी हमें हर चैलेंज को लेकर चलना सिखाती है। और हमने पिछले 1 साल में जिस चैलेंज को हैंडल किया है, वो किसी और की पावर नहीं है, वो हमारी खुद की पावर है। चूंकि हम लोग खुश लोग हैं, तो एक ना एक दिन इस इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो बना ही लेंगे। रोक तो कोई नहीं पाएगा, समय कम ज्यादा लग सकता है। Thank you, my friends. I think this is the part 1 which I have discussed with you, which was pre-budget, which makes you ready to listen to the budget in more concrete manner and more specific. So this time, when you will listen on 1st February, the budget which will be live presented to you, you will understand the figures. And please try to spot on what I told you and how it has been taken care in the budget. And the part 2 will be the post budget analysis, जिसमें मैं दोबारा आपके पास आऊंगा और आपको इस बजट में आने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे वो आपको जरूर बताऊंगा। आई विल मीट यू वेरी सून। वो थम्स अप वाली सील अगर हार्ट पे मिल जाए तो आई कैन लीव नाउ। That's great. That's great. Thank you. Thank you.